10th क्वेश्चन है, प्रूव दैट द लाइन्स ज्वाइनिंग A 3 5 B 5 8 and C 7 minus 1 D 5 minus 4 are parallel. We know lines are parallel, their slopes are equal. तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन और इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन्स की अगर स्लोप इक्वल है तो वो पैरेलल होंगी लाइन्स. So let m1 be the slope of line joining the points A and B. तो m1 क्या हो जाएगा, y2 minus y1 8 minus 5 by 5 minus 3 x2 minus x1 is equal to 3 by 2. And let m2 be the slope of line joining the points C 7 minus 1 and D 5 minus 4. Then m2 is equal to y2 minus y1 by x2 minus x1, that is equal to minus 3 by minus 2 is equal to 3 by 2. Since m1 is equal to m2, slope of the two lines are equal, hence lines are parallel. To each other, right? 11th question है, prove that the line joining A 7 2 B 4 minus 3 C minus 2 5 and D 8 minus 1 आर परपेंडिकुलर. सो लाइन्स परपेंडिकुलर कब होती हैं, जब m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 होता है. तो पहले हम m1 फाइंड आउट कर लेंगे. y2 माइनस y1 बाई -2 माइनस y1 बाई 4 माइनस 7 इज इक्वल टू -5 बाई -3 एंड m2 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 by x2 minus x1 is equal to -6 by 10. 2 से डिवाइड हो जाएगा ये, -3 by 5. नाउ m1 into m2 is equal to 5 by 3 into -3 by 5 is equal to -1. क्योंकि m1 m2 हमारा -1 के इक्वल आ गया, हेंस लाइन्स आर परपेंडिकुलर. प्रूव्ड. 12th क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द टू लाइन्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग आर पैरेलल, परपेंडिकुलर और नीदर ऑफ द टू. 4 पॉइंट्स हमें गिवन है. सो हम सबसे पहले स्लोप निकालेंगे लाइन ज्वाइनिंग ए बी and line joining CD. So let m1 be the slope of line joining the points A and B. Then m1 is equal to y2 minus y1 by x2 minus x1 4 by 3 and m2 is equal to y2 minus y1 by x2 minus x1 is equal to 8 by -6 is equal to -4 by 3. ये 4 by 3 है, y2 minus y1 by x2 minus x1, ये -4 by 3. So नाउ m1 और m2 इक्वल तो नहीं है, क्योंकि m1 हमारा आया है 4 by 3 और m2 है -4 by 3 और m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 भी नहीं है. सो लाइन्स आर नीदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर, हेंस लाइन्स आर नीदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर. राइट.
सेकेंड पार्ट है A 0 2, B 5 6 and C 6 2, D 1 - 2. M1 let M1 be the slope of line joining the points A and B. तो M1 हमारा हो जाएगा y2 minus y1 by x2 minus x1 that is equal to 4/5 and let M2 be the slope of line joining the points C and D. तो y2 minus y1 by x2 minus x1 minus 4 by minus 5 that is equal to 4/5. Here m1 is equal to m2 is equal to 4/5 क्योंकि दोनों की स्लोप सेम है लाइन की, hence lines are parallel. Right? थर्ड पार्ट है A 3 4, B 4 6 and C -1 2, D -13 8. So M1 हम पहले फाइंड आउट करेंगे y2 minus y1 M2 by x2 minus x1 is equal to 2/1 and M2 is equal to y2 minus y1 by x2 minus x1. 6 by minus 12 equal to -1/2. Now m1 is equal to 2 and m2 is equal to -1/2. m1 into m2 we can see that -1, hence lines are परपेंडिकुलर क्योंकि m1 m2 हमारा -1 के इक्वल आया है. थर्टीन क्वेश्चन है इफ द लाइन थ्रू -4y and 1 3 is parallel to the line through -2 5 and 0 7. Find the value of y. Since given lines are parallel, दिया हुआ है कि ये लाइन्स पैरेलल हैं. लेट m1 बी द स्लोप ऑफ लाइन joining the points -4y and 1 3. m1 क्या हो जाएगा हमारा y2 minus y1 by x2 minus x1 3 minus y by 5. Similarly m2 be the slope of line joining the points -2 5 and 0 7. तो m2 हमारा हो जाएगा y2 minus y1 by x2 minus x1 is equal to 2/2 is equal to 1. गिवन है कि लाइन्स आर पैरेलल. लाइन्स आर पैरेलल का मतलब है therefore m1 should be equal to m2. This implies 3 minus y by 5 is equal to 1 implies 3 minus y is equal to 5. That means y is equal to -2. Right? 14th question है find y such that line through 3y and 2 7 is perpendicular to the line through -1 4 and 1 8. तो टू लाइंस परपेंडिकुलर कब होती है? जब उनकी स्लोप m1 और m2 का मल्टीप्लिकेशन -1 के इक्वल हो. m1 इंटू m2 हमारा अगर -1 के इक्वल हो जाएगा तो लाइंस परपेंडिकुलर हो जाएगी. और m1 क्या होता है? ये दोनों पॉइंट से पास जो लाइन हो रही है उसकी स्लोप. तो स्लोप होती है i2 minus y1 7 minus y डिवाइडेड बाई x2 minus x1 2 minus 3 एंड m2 हो जाएगा. ये दो पॉइंट्स हमारे -1 4 एंड 1 8. तो y2 minus y1 8 minus 4 x2 minus x1 1 minus -1 7 minus y by -1
is equal to m1 and m2 is equal to 4/2. Now lines are perpendicular, therefore m1 into m2 is equal to -1. This implies m की वैल्यू है माइनस ऑफ 7 - 5 इंटू m2 की वैल्यू है 2 इज इक्वल टू -1. तो ये माइनस माइनस साइन कैंसिल. 2 into 7 14 minus 2y is equal to 1. This implies 2y is equal to 14 minus 1 13 and y is equal to 13/2. 15th question है without using Pythagoras theorem show that 0 4 1 2 and 3 3 are the vertices of a right angled triangle. So हम let करेंगे let A B and C be the vertices of triangle ABC. A 0 4 को लिया है, B 1 2 को लिया है और C 3 3 को. तो स्लोप ऑफ ए बी हम निकालेंगे. ए और बी की स्लोप क्या हो जाएगी m2 माइनस m1 बाई x2 माइनस x1 इज इक्वल टू -2. स्लोप ऑफ बी सी m2 माइनस m1 बाई x2 माइनस x1 इज इक्वल टू 1/2. एंड स्लोप ऑफ ए सी m2 माइनस m1 बाई x2 माइनस x1 इज इक्वल टू -1/3. अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि m1 और m2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा -1. दिस इम्प्लाइज -1 होने का मतलब है कि ए बी जो है वो परपेंडिकुलर है बी सी के, क्योंकि m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1. इसका मतलब है एंगल भी राइट एंगल है. सो हेंस ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल. राइट एंगल ट्राइंगल. Proved. 16th question है a quadrilateral has the vertices at the points -4 2 2 6 8 5 and 9 -7. Show that the midpoints of the sides of this quadrilateral are the vertices of a parallelogram. So क्योंकि ये वर्टिसेस पैरेललोग्राम के हैं तो हम लेट कर लेते हैं ए बी सी डी इन पॉइंट्स को जो कोऑर्डिनेट्स गिवन है. लेट ए बी सी एंड डी बी द वर्टिसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी हमने बना दिया. और लेट पी क्यू आर एस बी द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी बी सी सी डी एंड डी ए या ए डी रिस्पेक्टिवली. इनके मिड पॉइंट्स हैं और ये हमने बना दिया क्वाड्रिलेटरल, इसके ए बी सी डी वर्टिसेस हैं. तो अब इनके जो मिड पॉइंट्स हैं इनके हम कोऑर्डिनेट्स मिड पॉइंट फॉर्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं. सो द कोऑर्डिनेट्स आर ऑफ पी क्यू आर एंड एस. पी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 2 + -4/2. इसके पी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -2/2 दैट इज -1 एंड 6 + 2/2 4. ये पी के कोऑर्डिनेट्स हो गए. क्यू के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 2 + 8 10/2 एंड 11/2. आर के 8 + 9 17/2 5 - 7 -2/2 दैट इज -1. और एस के हो जाएंगे -4 + 9 5/2 एंड 2 - 7 -5/2. इनके कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए. अब हमें प्रूव करना है कि ये जो पी क्यू आर एस हैं वो साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम है, वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम है. तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज में से हम यहाँ पर कुछ प्रूफ कर देंगे तो हमें हमारा प्रूव हो जाएगा. पैरेललोग्राम में जो साइड्स होती हैं अपोजिट साइड्स वो पैरेलल होती हैं. तो हम कोई भी दो साइड्स जो अपोजिट हैं एस आर और पी क्यू या फिर एस पी और आर क्यू, इनको अगर पैरेलल प्रूव कर दें और लेंथ उनकी इक्वल होती है पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स की, तो हमारा थ्योरम प्रूव हो जाएगा. अब हम लेते हैं दो साइड्स पी क्यू एंड एस आर. तो लेंथ ऑफ पी क्यू हम इजिली निकाल सकते हैं. नाउ पी क्यू इज इक्वल टू पी और क्यू के हमें कोऑर्डिनेट्स पता हैं तो हम पी क्यू निकाल सकते हैं.
डिस्टेंस फॉर्मूला से x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, x2 माइनस x1, तो 5 माइनस माइनस 1 6 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 11 by 2 माइनस 4 दैट इज 11 माइनस 8 by 2 3 by 2 स्क्वायर 9 by 4 इज इक्वल टू 36 हो जाएगा ये, तो हमारा आएगा 36 4 जा 4 6 जा 24 कैरी ओवर 2 4 3 जा 12 एंड 2 14 144 प्लस 9 by 4 that is equal to 153 by 4. एंड PQ हमने निकाली SR इज इक्वल टू SR रूट x2 माइनस x1, ये हो जाएगा 12 by 2 6 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 माइनस 5 by 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 3 by 2 होल स्क्वायर 9 by 4, तो ये इक्वल हो जाएगा इज इक्वल टू रूट 153 by 4. इनकी लेंथ तो हम इक्वल आई, पहले हम इनकी स्लोप, इन दोनों लाइंस की लेंथ तो हमने देख ली सेम है, लेकिन सबसे पहले हमें यूँ प्रूफ करना होगा कि ये पैरेलल है, और पैरेलल प्रूफ करने के लिए अगर हम इनकी स्लोप m1 और m2 इक्वल हो जाती है, लेट इसकी स्लोप m1 है और इसकी m2, अगर m1 इज इक्वल टू m2 जाती है तो ये पैरेलल हो जाएंगे, क्योंकि हमने थ्योरम पढ़ा था अगर दो लाइंस की स्लोप इक्वल है तो वो पैरेलल लाइंस होंगी. तो m1 फाइंड आउट कर लेते हैं. लेट m1 एंड m2 बी द स्लोप्स ऑफ लाइन PQ एंड SR. देन m1 हमारा क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1, PQ की स्लोप है m1, PQ y2 माइनस y1 11 माइनस माइनस 1 11 प्लस 11 by 2 प्लस 1 13 by 2 by x2 माइनस x1, सॉरी y2 माइनस y1 11 by 2 माइनस 4 that is 3 by 2 माइनस y1 by x2 माइनस x1 6 that is equal to 3 2 जा 6 1 by 4 and m2 is equal to m2 क्या हो जाएगी, y2 माइनस y1 माइनस 5 by 2 प्लस 1 माइनस 3 by 2 बाई x2 माइनस x1 माइनस 12 by 2 माइनस 6 माइनस माइनस कैंसिल 1 by 4. Since m1 is equal to m2, so we can say that PQ is parallel to SR, and from 1 and 2, अगर इनको 1 और 2 लेट करें, from 1 and 2 PQ जो है वो RS के इक्वल भी है और पैरेलल भी है. So we can say that PQRS is a parallelogram. Proved. 17th question है, if a line is equally inclined to the axis, prove that its slope is plus minus 1. So let हम करेंगे, let the inclination of the line, with x-axis is alpha and beta, with x and y axis respectively. x axis और y axis के साथ इंक्लिनेशन जो है लाइन का वो अल्फा एंड बीटा है.
वी नो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। ये कार्टेशियन सिस्टम हो या सर कोई सिस्टम हो, कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये एंगल जो होता है एक्स और वाई एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। और कोई लाइन है, लेट्स से दिस लाइन एल, इसका इंक्लिनेशन एक्स एक्सिस से अल्फा है और वाई एक्सिस से बीटा है। तो वी कैन से दैट अल्फा प्लस बीटा जो होगा, या इस डायरेक्शन में हो, कोई लाइन इस डायरेक्शन में भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ हो, इस साइड भी हो सकती है, किसी भी साइड हो सकती है वो लाइन। तो लेकिन ये जो मेजरमेंट होता है ये 90 डिग्री होता है, वी नो। देन अल्फा प्लस बीटा विल इक्वल टू 90 डिग्री। अब गिवन है कि लाइन इज गिवन दैट line is equally inclined to the axis, that the line is equally inclined to the axis। equally inclined का मतलब है कि अल्फा और बीटा की वैल्यू इक्वल है। इसका मतलब है अल्फा इज इक्वल टू बीटा। दिस इम्प्लाइज अल्फा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री। 2 अल्फा इज इक्वल टू 90 इम्प्लाइज अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री। और ये हम यहाँ पर लिखेंगे प्लस माइनस 90। ये पॉजिटिव है, लेकिन ये अगर नेगेटिव एंगल है, नेगेटिव एक्सिस की तरफ बन रहा है, तो ये प्लस माइनस 90 होता है। तो प्लस माइनस 45 डिग्री हो जाएगा अल्फा की वैल्यू। अब हमें क्या फाउंड करना है, हमें प्रूव करना है इट्स स्लोप इज प्लस माइनस 1। अब हमारा एंगल आ गया प्लस 45 और माइनस 45, क्योंकि अगर इस पॉजिटिव एक्सिस में है तो वो पॉजिटिव एंगल बनता है, और नेगेटिव एक्स एक्सिस की साइड अगर इंक्लाइन है लाइन तो नेगेटिव एंगल बनता है। तो वी नो स्लोप ऑफ अ लाइन m इज इक्वल टू tan अल्फा। tan प्लस माइनस 45 डिग्री इज इक्वल टू प्लस tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। तो अगर वो पॉजिटिव है तो प्लस 1 और नेगेटिव है तो माइनस 1। प्रूव्ड, राइट। 18th क्वेश्चन है a 5 minus 3 b 8 2 c 0 0 are the vertices of a triangle. Show that the median from a is perpendicular to the side bc. So let a b c be the vertices of the triangle. तो अगर a से मीडियन जा रही है, वी नो दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी, क्योंकि मीडियन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये मिड पॉइंट होगा बी सी का। सो इफ ए डी इज मीडियन देन डी इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी। So coordinates of D are, D के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 8 प्लस 0 बाई 2 4 एंड 2 प्लस 0 बाई 2 1। D के कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए। अब हमें प्रूफ करना है कि AD इज परपेंडिकुलर टू BC। तो हमें पहले AD की स्लोप निकालनी होगी। नाउ स्लोप ऑफ AD, स्लोप ऑफ AD क्या हो जाएगी, D के कोऑर्डिनेट्स हमें मिले हैं 4 और 1, तो स्लोप हो जाएगी y2 माइनस y1 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 बाई 2 y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, तो माइनस 3 माइनस 1 बाई x2 माइनस x1 5 माइनस 4 माइनस 4। और स्लोप ऑफ BC हमारी हो जाएगी y2 माइनस y1 माइनस 2 बाई x2 माइनस x1 माइनस 8 1 बाई 4। लेट दिस बी m1 एंड दिस बी m2। m1 और m2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, m1 मल्टीप्लाइड बाई m2, तो m1 हमारा -4 आया था और m2 1/4।
-1 आ गया. m1 into m2 is equal to -1. Therefore AD is perpendicular to BC. राइट. जब टू लाइंस की स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 होता है तो वो लाइंस म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं. हेंस प्रूव्ड. अब 19th क्वेश्चन है, यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ स्लोप प्रूव दैट A 4 3, B 6 4, C 5 6 and D 3 5 are the angular points of a square. 19th क्वेश्चन है, यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ स्लोप प्रूव दैट A 4 3, B 6 4, C 5 6, D 3 5 आर द एंगुलर पॉइंट्स ऑफ अ स्क्वायर. तो सबसे पहले एंगुलर पॉइंट्स का मतलब होता है वर्टिसेस. इसका मतलब है कि हमें ये प्रूव करना है कि ये जो पॉइंट्स गिवन है ये वर्टिसेस हैं किसके, एक स्क्वायर के. तो हमें यूजिंग कंसेप्ट ऑफ स्लोप यूज करना है. तो स्लोप के कंसेप्ट में अगर हम स्क्वायर के बारे में बात करें तो स्क्वायर में चारों साइड्स जो होती हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं. ए बी इज परपेंडिकुलर टू बी सी इज परपेंडिकुलर टू सी डी एंड सी डी इज परपेंडिकुलर टू ए डी. तो हम चारों साइड्स की स्लोप निकालेंगे और ए बी पर इनमें से साइड्स को म्यूचुअली परपेंडिकुलर अगर हम प्रूव कर देते हैं और चारों साइड्स इक्वल भी होती हैं तो स्लोप के कंसेप्ट को यूज करना है. तो हमें पहले स्लोप निकालनी है. सो लेट स्लोप ऑफ ए बी डायरेक्टली निकाल लेते हैं हम. स्लोप ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, m1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1. एंड सिमिलरली स्लोप ऑफ बी सी m2 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1. स्लोप ऑफ सी डी m3 इज इक्वल टू सी डी की स्लोप y2 माइनस y1 बाई x2 minus x1. and slope of AD m4 is equal to 5 minus 3 by 3 minus 4. स्लोप हमारी निकल गई. नाउ m1 into m2 is equal to -1. m1 m2 इज इक्वल टू -1 होने का मतलब है कि ए बी इज परपेंडिकुलर टू बी सी एंड m2 इंटू m3 अगर हम करें m2 इंटू m3 बी सी एंड सी डी भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर होनी चाहिए. m2 हमारा -2 है और m3 है. यहाँ पर 1/2 आएगा. 6 माइनस 5 बाई 5 माइनस 3. सो -2 इंटू 1/2 वो भी -1 है. इसका मतलब है m2 क्या है, BC की स्लोप है और BC इज परपेंडिकुलर टू CD. एंड m3 इंटू m4 करें अगर हम m3 इंटू m4. m3 हमारा 1/2 था और m4 है -2 तो ये भी -1 आ गया. दिस इम्प्लाइज CD इज परपेंडिकुलर टू AD. सो वी कैन से दैट all sides are perpendicular to consecutive sides are perpendicular to each other. So these are the vertices, angular points of a square. So we will write each pair of consecutive sides are perpendicular to each other, hence ABCD are the angular points of a square, right?